नमो लोये सौहरिहन्तानं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकालवती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् यो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निराकार। 10 લક્ષણ પર્યુષણ મહાપર્વ એનો આજે બીજો દિવસ છે. ઉત્તમ ક્ષમા, ઉત્તમ માર્દવ, ઉત્તમ આર્જવ, ઉત્તમ શૌચ, ઉત્તમ સત્ય, ઉત્તમ સંયમ, ઉત્તમ તપ, ઉત્તમ ત્યાગ, ઉત્તમ આકિંચન અને ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય એવા ધર્મના 10 લક્ષણ છે. અને 10 લક્ષણ પર્યુષણ પર્વમાં આપણે એક એક દિવસ સાથે એક એક ધર્મનો વિચાર કરીએ છીએ. પહેલું ઉત્તમ ક્ષમા, એનો વિચાર કર્યો. આજે બીજો દિવસ છે ઉત્તમ માર્દવ. બીજો દિવસ ઉત્તમ માર્દવ. માર્દવ એટલે જેમાં કોમળતા છે, માન અભિમાન રહિતપણું છે, તે માર્દવ છે. અને એમાં ઉત્તમની વાત કરી એટલે નિશ્ચયથી તો આત્માનું સ્વરૂપ જ એવું છે, એમાં કોઈ માન અભિમાન છે જ નહીં. માન ન હોવું એ ઉત્તમ માર્દવ એમ કહીએ, પણ એ તો આત્માનો ધર્મ છે. એને અંદરમાં કોઈ માન કશાય છે જ નહીં. એ તો આવી પડેલી ઉપાધિ છે, પોતાનો અપરાધ છે, એટલે એને એવા કષાય હોય છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એ જે કષાયની આપણે વાત કરીએ છીએ, તો એ કષાય એ કંઈ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. એટલે એને અભિમાન ન કરવું એમ જે કહેવામાં આવે એ તો વ્યવહારથી વાત છે. વાસ્તવમાં એને પોતાના સ્વભાવ ભાવે થતાં જ એ માન ચાલ્યું જાય છે. કૃપાળુદેવે એટલે એ રીતે વાત કરી છે કે જો એ માન ન હોત તો મોક્ષ અહીંયા હોત. એટલે એનો અર્થ જ એ છે કે જે પોતાના સ્વરૂપ તરફ વળી ગયો છે એને કોઈ માન કશાય નડતો નથી. એટલે એ માન કશાય એને ઉત્પન્ન જ થતો નથી. એવો કશાય એને થતો નથી. માન અભિમાન, અનેક પ્રકારના અભિમાન, 8 પ્રકારના મદ, એ 8 પ્રકારના મદ એ એને સંસાર પર્યાયમાં હોય છે. એટલે કે એને કશાય છે એટલે છે. અને કશાયનું મૂળ કારણ જોવા જઈએ તો એવી કર્મની પ્રકૃતિઓ એ તો નિમિત્ત માત્ર છે, પરંતુ એનો દોષ છે પોતાનો, એ એવી કર્મના ઉદય, એવી કર્મ પ્રકૃતિના ઉદય સાથે જોડાય છે, એટલે એને એવા માન થાય છે. તો એ માન જેને નથી એવો એ નિર્માણી એ એનો સ્વભાવ છે. અને જ્યારે એવા સ્વભાવ ભાવે થાય છે, અથવા તો એ મંદ કસાઈ થયો છે અને પછી પોતે માન અભિમાનને છોડે છે, તો એને વિકલ્પો ઘટે છે અને પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ એને સરળતાથી થાય છે. તો એ ઉત્તમ માર્દવ. ઉત્તમ માર્દવ એટલે સ્વભાવ ભાવે થતા એને ઉત્તમ માર્દવ હોય છે. તો હવે આપણે પ્રવચનસારનો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. પ્રવચનસારના સ્વાધ્યાયમાં આપણે જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન અધિકાર ચાલે છે. ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય રચિત આ એક અદ્ભુત શાસ્ત્ર છે. જ્ઞાન પ્રદાન કથન એમાં કરવામાં આવ્યા છે અને એની ટીકા પણ એવી જ અદ્ભુત છે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન રચિત તત્વ દીપિકા અને જયસેન આચાર્ય ભગવાન રચિત તાત્પર્ય વૃત્તિ ટીકા, એ બેનો આધાર લઈ અને આપણે સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ. પ્રવચનસારના સ્વાધ્યાયમાં જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન અધિકારની ગાથા
આપણે 73 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે. હવે આગળ ગાથા લઈએ છીએ, ગાથા 178 તથા 179. ગાથા 178 ના ઉપોદઘાતમાં કહે છે કે હવે દ્રવ્ય બંધનો હેતુ ભાવબંધ છે એમ પ્રગટ કરે છે. દ્રવ્ય બંધનું કારણ ભાવબંધ છે એમ ગાથા 178 કહે છે. પહેલા સંસ્કૃતમાં ગાથા લઈએ. સ્વપ્રદેશ સ આત્મા તેષુ પ્રદેશેષુ પુદ્ગલાઃ કાયાઃ પ્રવિશન્તિ યથા યોગ્યમ તિષ્ઠન્તિ ચ યાન્તિ બધ્યન્તે. ગુજરાતીમાં ગાથા છે. સ્વપ્રદેશ છે તે જીવ પ્રદેશમાં આવે અને ઉદ્ગલ સમૂહ રહે યથોચિત જાય છે, બંધાય છે. ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે સ આત્મા સ્વપ્રદેશ, તે આત્મા સ્વપ્રદેશ છે એટલે પ્રદેશ સહિત છે. તેષુ પ્રદેશેષુ પુદ્ગલાઃ કાયાઃ પ્રવિશન્તિ, તે આત્મા સ્વપ્રદેશ છે અને એ પ્રદેશોમાં પૂદગલ સમૂહો પ્રવેશે છે. યથા યોગ્યમ તિષ્ઠન્તિ, યથા યોગ્ય રહે છે, યાન્તિ જાય છે, ચ બધ્યન્તે અને બંધાય છે. તે આત્મા સ્વપ્રદેશ છે, પ્રદેશ સહિત છે અને એ પ્રદેશોમાં પૂદગલ સમૂહો પ્રવેશે છે, યથા યોગ્ય રહે છે, જાય છે અને બંધાય છે. જો અંદર પ્રવેશે એટલે મૂળ વસ્તુની અંદર પ્રવેશ પામે, ધ્રુવની અંદર, એમ એનો અર્થ નથી. કેમ કે વસ્તુ તો ગુણોનો સમૂહ છે અને ગુણની અંદર કાંઈ બીજો પૂદગળ પરમાણુ આવે એવી કોઈ વાત નથી. પણ એવા આવે છે, એવા પરમાણુ કાર્બન રજકણો આવે છે, જાય છે અને બંધાય છે, એટલે એને આશ્રવ અને બંધ થાય છે. ટીકામાં આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આ આત્મા લોકાકાશ તુલ્ય અસંખ્ય પ્રદેશ વાળો હોવાથી સ્વપ્રદેશ છે. જેમ લોકાકાશના અસંખ્ય પ્રદેશ છે એવી રીતે આત્માના પણ અસંખ્ય પ્રદેશ છે, એટલે એ પ્રદેશ સહિત છે. તેના એ પ્રદેશોમાં કાય વર્ગણા, વચન વર્ગણા અને મૌન વર્ગણાના આલંબન વાળો પરિસ્પંદ એટલે કંપ જે પ્રકારે થાય છે તે પ્રકારે કર્મ પૂદગલના સમૂહો સ્વયંમેવ પરિસ્પંદવાળા વર્તતા થકા પ્રવેશે પણ છે, રહે છે અને જાય છે. જો એનું કારણ સમજાયું, શા માટે કેવી રીતે આવે છે, એની વાત અહીંયા બહુ સરસ રીતે લીધી. કે આત્માના પ્રદેશોની વાત કરીને પછી કહે છે કે તેના એ પ્રદેશોમાં, આત્માના પ્રદેશોમાં કાય વર્ગણા, વચન વર્ગણા અને મનોવર્ગણાના આલંબન વાળો પરિસ્પંદ. આ આત્માના પ્રદેશોમાં પરિસ્પંદ એટલે કંપ. એ કંપ એ શેને કારણે છે તો કે કાય વર્ગના, વચન વર્ગના અને મનોવર્ગણાના આલંબનથી એ પરિસ્પંદ છે. એના આલંબન વાળો પરિસ્પંદ કંપ થાય છે. અને એ જે પ્રકારે કંપ જે પ્રકારે થાય છે તે પ્રકારે કર્મ પૂદગલના સમૂહો સ્વયંમેવ પરિસ્પંદ વાળા વર્તતા થકા પ્રવેશે પણ છે, રહે છે અને જાય પણ છે. અને જો જીવને મોહ, રાગ, દ્વેષ રૂપ ભાવ હોય તો બંધાય પણ છે. માટે નક્કી થાય છે કે દ્રવ્ય બંધનો હેતુ ભાવ બંધ છે, દ્રવ્ય બંધનું કારણ ભાવ બંધ છે. હવે એ પછીથી ગાથા 179 છે, એના ઉપોદઘાતમાં કહે છે કે હવે રાગ પરિણામ માત્ર એવો જે ભાવબંધ તે દ્રવ્ય બંધનો હેતુ હોવાથી તે જ નિશ્ચય બંધ છે એમ સિદ્ધ કરે છે. રાગ પરિણામ માત્ર એવો જે ભાવબંધ જે જીવને વિશે તે દ્રવ્ય બંધનો હેતુ હોવાથી તે જ નિશ્ચય બંધ છે એમ સિદ્ધ કરે છે. ગાથા
179 સંસ્કૃતમાં લઈએ. રક્તો બદનાતિ કર્મ મુચ્યતે કર્મભી રાગ રહિતાત્મ એષ બંધ સમાસો જીવાના જાનીહી નિશ્ચયતઃ. ગુજરાતીમાં ગાથા છે. જીવ રક્ત બાંધે કર્મ રાગ રહિત જીવ મુકાય છે. આ જીવ કેરા બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચય જાણજે. ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે રક્ત કર્મ બદનાતિ, રાગી આત્મા કર્મ બાંધે છે. રાગી આત્મા કર્મ બાંધે છે. જે રાગ સહિત છે તે કર્મ બાંધે છે. રાગ રહિત આત્મા કર્મભી મુચ્યતે, રાગ રહિત આત્મા કર્મથી મુકાય છે. રાગી આત્મા કર્મ બાંધે છે અને રાગ રહિત આત્મા કર્મથી મુકાય છે. એષ જીવાના બંધ સમાસ, આ જીવોના બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચયતઃ જાણી, નિશ્ચયથી જાણ. શું કે છે? રાગી આત્મા કર્મ બાંધે છે, રાગ રહિત આત્મા કર્મથી મુકાય છે. આ જીવોના બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચયથી જાણ. ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે રાગ પરિણત જીવ જ નવા દ્રવ્ય કર્મથી બંધાય છે. રાગ રૂપે જે પરિણમે છે, રાગ ભાવે જે પરિણમે છે એ જ નવા કર્મથી બંધાય છે. રાગ પરિણત જીવ જ નવા કર્મથી, નવા દ્રવ્ય કર્મથી બંધાય છે. પોતે ભાવ કર્મ અને ભાવ કર્મના નિમિત્તે દ્રવ્ય કર્મ. એટલે એમ કહી દીધું કે રાગ પરિણત જીવ જ નવા દ્રવ્ય કર્મથી બંધાય છે. વૈરાગ્ય પરિણત બંધાતો નથી. વૈરાગ્ય પરિણત જીવ બંધાતો નથી. રાગ પરિણત જીવ નવા દ્રવ્ય કર્મથી મુકાતો નથી. વૈરાગ્ય પરિણત જ મુકાય છે. કોણ છૂટે છે? રાગ પરિણત છે તે નથી છૂટતો. વૈરાગ્ય પરિણત જ મુકાય છે, છૂટે છે. વળી કહે છે કે રાગ પરિણત જીવ સંસ્પર્શ કરતા, સંબંધમાં આવતા એવા નવા દ્રવ્ય કર્મથી અને ચીર સંચિત, લાંબા કાળથી સંચય પામેલા એવા જૂના દ્રવ્ય કર્મથી બંધાય જ છે. રાગ રૂપે જે પરિણમે છે, રાગ ભાવે પરિણમે છે એવો જીવ સંબંધમાં આવતા એવા નવા દ્રવ્ય કર્મથી અને લાંબા કાળથી સંચય પામેલા એવા જૂના દ્રવ્ય કર્મથી બંધાય જ છે, મુકાતો નથી. વૈરાગ્ય પરિણત જીવ સંસ્પર્શ કરતા એટલે સંબંધમાં આવતા એવા નવા દ્રવ્ય કર્મથી અને ચીર સંચિત એવા જૂના દ્રવ્ય કર્મથી મુકાય જ છે, બંધાતો નથી. વૈરાગ્ય પરિણત જીવ એ સંબંધમાં આવતા એવા નવા દ્રવ્ય કર્મથી બંધાતો નથી અને જૂના દ્રવ્ય કર્મથી પણ એ ઉલટો મુકાય છે, છૂટે છે, બંધાતો નથી. આ વૈરાગ્યની વાત કરી. અને આ વૈરાગ્ય એટલે કેવો વૈરાગ્ય? એ જ્ઞાન સહિતનો વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે ઉદાસીનતા, જગતના બધા પદાર્થો પ્રત્યે જ્ઞાન સહિતની ઉદાસીનતા છે. એટલે એમાં એ કોઈ રીતે ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ કરતો નથી, રુચિ કરતો નથી અને એમાં પોતાને કંઈ હિતકારી છે કે કંઈ અહિતકારી છે, પોતાને કોઈ લાભદાયી છે કે નુકસાન કરતા છે એવી એને વાત નથી. એટલે પછી એને એના તરફનો કોઈ રીતે લગાવ નથી. એને એના તરફ રાગ પણ થતો નથી અને દ્વેષ પણ થતો નથી. અને એમ થતા કે પૂર્વના જે કર્મ ઉદયમાં આવ્યા છે એની સાથે જોડાતો નથી. એટલે એની તો નિજરા થાય છે અને એને નવા કર્મનો બંધ પડતો નથી. એટલે અહીંયા કહે છે કે વૈરાગ્ય પરિણત જીવ સંબંધમાં આવતા એવા નવા દ્રવ્ય કર્મથી અને ચીર સંચિત એવા
એટલે લાંબા કાળથી સંચય પામેલા એવા જૂના દ્રવ્ય કર્મથી મુકાય છે, છૂટે છે, બંધાતો નથી. માટે નક્કી થાય છે કે દ્રવ્ય બંધનો સાધકતમ ઉત્કૃષ્ટ હેતુ હોવાથી રાગ પરિણામ જ નિશ્ચયથી બંધ છે. આ રાગ પરિણામને કારણે જ બંધ છે. એટલે એ છે કે દ્રવ્ય બંધનો સાધકતમ ઉત્કૃષ્ટ હેતુ હોવાથી રાગ પરિણામ જ નિશ્ચયથી બંધ છે. રાગ પરિણામ જ એ જ બંધ છે. એ રીતે આ 179મી ગાથા કહી. તો આપણે આ બંને ગાથાઓ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે, જે અધ્યાત્મ સમજાવ્યું છે, તે બધું લઈએ. ગાથા 178 તથા 179. પ્રવચન સુધા ભાગ 7મો, એના પાના નંબર 247 ઉપર અહીંયા પ્રવચન નંબર 183. એમાં ગુરુદેવ 178મી ગાથાથી શરૂ કરી અને વિસ્તાર કરે છે. प्रवचन सार ज्ञेय अधिकार चलते हैं. ज्ञेय अधिकार, ज्ञान में जानने योग्य ज्ञेय, उसका क्या स्वरूप है वो कहते हैं. 177 आ गई. 178. अब यह बतलाते हैं कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है. क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद शुद्ध स्वरूप है. उसको चूक कर आत्मा का प्रदेश में जो परिस्पंद कंपन होता है और आत्मा में जो राग द्वेष में मोह ऐसा परिणाम होता है, वो भावबंध कहलाते हैं. ये भावबंध द्रव्यबंध का निमित्त है. नया जड़ का कर्म का द्रव्यबंध होता है, उसमें वो भावबंध निमित्त है. द्रव्यबंध का हेतु भावबंध है. देखो समझ में आया? ये आत्मा जैसा भाव कंपन और प्रदेश में स्वभाव को भूलकर जितना मोह मिथ्यात्व भाव और रागद्वेष भाव करते हैं, वो भावबंध है. वो नया जड़ कर्म का हेतु निमित्त है. समझ में आते हैं? राग न कर न हो, अधिकार न करे तो बंध का योग्यता न हो. बंध में बंद होने की योग्यता भी न हो, विकार न करे तो बंध वो आएगा. 179 में सब. यहाँ तो अजी हेतु बताते हैं. देखो 178. सपदेशो स्वपा तेसु पदेशेषु पुगला काया पविसंति जहा जोगम जथा जोगम इठंती जंती बजंती. यानी टीका, उसकी टीका. आत्मा है वो लोकाकाश स्थूल असंग प्रदेश वाला होने से स्वप्रदेश है. क्या कहते हैं? एक परमाणु है, परमाणु पॉइंट रजकण, वो जितनी जगह रुके इतनी जगहों को यहाँ प्रदेश कहते हैं. ऐसा आत्मा असंग प्रदेश चौड़ा है. चौड़ा कहते हैं ना. समझ में आया? आत्मा देह से भिन्न, शरीर और कर्म उससे भिन्न असंग प्रदेशी आत्मा है. असंग प्रदेश का अर्थ एक परमाणु जितनी जगहों को रुके इतनी जगहों को प्रदेश कहने में आता है. ऐसा आत्मा असंग प्रदेशी है. तो कहते हैं यह आत्मा लोकाकाश तुल्य, संख्या कहते हैं. लोकाकाश व्यापक है नहीं. जितना लोक का आकाश का प्रदेश है असंख्य, इतना असंख्य प्रदेशी होने से इतना पौड़ायम नहीं, इतनी संख्या में सप्रदेश है. आत्मा सप्रदेश है. असंख्य प्रदेश होने से
स्वप्रदेश है। कालानुवादी तो अप्रदेशी है, उसका दूसरा प्रदेश है नहीं। आत्मा असंग प्रदेशी माँ के स्वप्रदेश है। उसके उन प्रदेशों में पहले कंपन लेना है कि आत्मा के प्रदेशों में काय वर्गना, शरीर की वर्गना, परमाणु की माटी, वर्गना એટલે समूह जड़ का, ऐसे वचन वर्गना, वचन की परमाणु का समूह, और मनोवर्गना, मन या का रजकण का समूह मनो, उसका आलम्बन वाला, उसका आलम्बन नामो निमित्त वाला अपने परिस्पंद जिस प्रकार से होते हैं, आत्मा में असंग प्रदेश में कंपन जो मन वचन काय की वर्गना का निमित्त में अपने में जितना जिस प्रकार का कंपन होता है, उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह स्वयं में परिस्पंद वाले होते हुए क्या कहते हैं, जब आत्मा अपना असंग प्रदेश में कंपन करते हैं परिस्पंद, समझाई है? समझाई है कि नहीं? आत्मा है ना वस्तु अंदर भिन्न, हाँ तो शरीर है, कर्म माटी है, धूड़ है, अंदर 8 कर्म है, वो भी धूड़ है, अजीब अजीब माटी धूड़ है, वाणी भी धूली है, धूड़ उड़ती है। देखो वो आत्मा नहीं, आत्मा तो अंदर में असंग प्रदेश पौड़ा, पौड़ा कहते हैं ना, चौड़ा, असंग प्रदेश चौड़ा, वो असंग प्रदेश में मन वचन काया किया वर्गना जो समूह जड़ है, उसका निमित्त में अपना प्रदेश में परिस्पंद नाम कंपन नाम ध्वजारा होता है। परिस्पंद ध्वजारा कहते हैं कंपन हमारे वर्गना का आलम्बन वाला, आलम्बन शब्द निमित्त वाला, वो वर्गना जिसमें निमित्त है, ऐसे परिस्पंद होता है आत्मा में असंग प्रदेश में। तो जिस प्रकार से होता है कंपन, जिस प्रकार से होता है यथा योग उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह, वो कर्म होने योग परमाणु है जड़ माटी, कर्म होने योग पुद्गल माटी जड़ है यहाँ भिन्न, और स्वयं में परिस्पंद वाले होते हैं, उसमें प्रदेश स्वयं में कंपन वाला होता है, होते हैं वे प्रवेश भी करते हैं। आत्मा असंग प्रदेश है, जहाँ कंपन प्रमाण में वो परमाणु जड़ का समूह अंतर प्रवेश करते हैं, प्रदेश की संख्या से प्रवेश करते हैं, उसको प्रदेश प्रदेश बंद कहते हैं। સમજાય માં આમાં આવે છે નામાં બોલવે ન આવે, મીઠાલાલજી આમાં આમ નહીં આમ નહીં એમ કરે, સમજાય છે કાંઈ? आत्मा असंख्य प्रदेशी वस्तु, उसका जितना कंपन होता है वो प्रमाण में परमाणु कर्म होने योग स्वयं में अपने कारण से कंपन हुआ तो उसके प्रवेश करना पड़ा, ऐसा नहीं। ये परमाणु में उस समय में परिस्पंद होकर असंख्य प्रदेशी आत्मा है, उसमें प्रवेश करते हैं। एक क्षेत्रावगातरिक प्रवेश करते हैं, असंख्य प्रदेश में घुस जाते नहीं। जहाँ आत्मा है असंख्य प्रदेशी, यहाँ कंपन के प्रमाण में वो परमाणु की योग्यता से वो कर्म वर्गणीय समूह है, अपने स्वयं में कंपन वाला है, स्वयं में कंपन होकर असंख्य प्रदेश जहाँ आत्मा है उसमें प्रदेश की संख्या से प्रवेश करते हैं। वो बोल भाई समुदाय में तो कहीं संप्रदाय में हम भी लो आऊ दया पाओ, बस सही कह दिया है। और देखो कर्म पुद्गल के समूह स्वयं में एम कहते हैं, आत्मा एक कंपन की हुआ आत्मा में
तो वो कारण से कर्म को आना पड़ा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, ये कर्म की वर्गणा स्वयं में कंपन वाली है, वो अपनी योग्यता से अंतर में प्रवेश करते है। समझ में आया? इसे बंध इसको होता है, बंध न होता है दूर की बात, एक तो गणेश में कहेगा। यहाँ तो बंध की बात करते हैं ना और रहते भी हैं। वो आत्मा का जितना मोह राग द्वेष परिणाम में है, वो प्रमाण में स्थिति रूप क्या पुद्गल रहते हैं, वो स्थिति है। समझ में आया? आत्मा का प्रदेश जिस प्रकार में कंपन होते हैं, वो प्रकार में परमाणु कर्मयुग स्वयं में अपने कारण से प्रवेश करते हैं और अपने कारण से ત્યાં स्थिति रूप रहते हैं, टिकते हैं और जाते भी है, और अनुभाग होकर क्षय भी उसके कारण से होता है। स्वयं में है, उसका पास आ जाए तो जाते हैं, नाश होता है उसके कारण से। और यदि जीव के मोह राग द्वेष भाव हो, यदि उसमें कंपन की साथ जितना प्रमाण में मिथ्यात भाव हो कि मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ, परद्रव्य से मेरे में होता है, मेरे जो पाप भाव आता है मेरे ठीक है, पुण्य भाव हो तो मेरे धर्म होता है, ऐसी जो मिथ्या श्रद्धा है उसको मोह भाव कहते हैं। और उसकी साथ राग ने द्वेष, इष्ट ने अनिष्ट जो परगने है जानने लायक, उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष जितना प्रमाण में आत्मा में मोह ने राग द्वेष होते हैं, उतना प्रमाण में वो बनते भी है प्रकृति। समझ में आया? चारे आ गया, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति ने अनुभाव। समझ में आया मोतीराम जी? अभ्यास न મળે जैन दर्शन में, जन्मे पण क्या तत्व है, क्या तत्व का स्वरूप है खबर नहीं। यानी धर्म करना, कहाँ से धर्म होगा? आत्मा क्या चीज है, उसमें कैसा कंपन होता है, उसमें मोह राग द्वेष भाव कैसे होता है, और वही नया द्रव्य कर्म में बंध हेतु कहने में आता है। वो समझ में आया? પછી बंध नाश क्यों होता है वो बात 79 में कहेगा। क्यों चंद्रकांत जी है? क्या सर्वव्यापक है, एक है, कहीं एक ईश्वर है, करो भक्ति ईश्वर मेरी, पर ईश्वर तो आठ है आत्मा। ईश्वर तो शुद्ध हो गया तो हो गया, वो क्या ईश्वर को आत्मा को मदद करते हैं। એવું આવે છો ભાઈ 13મા ધવલ में कि સર્વજીવના અનુગ્રહમાં તત્પર છે ભગવાન। વ્યવહાર ગ્રંથમાં એવા શબ્દ બહુ આવે, अनुग्रह કરવામાં तत्पर है। भगवान अनुग्रह करने में तत्पर है। वो ऐसी भाषा पकड़ ले तो ऐसा अर्थ में समझ में नहीं आता है। उसमें कहाँ है मुख्य है ने कैसा है भगवान? ओ 38वीं गाथा है। अणु वै गई पराणु गह परायणा जम जिणा जय पवरा जीराय दोष मोहान अनहा वायणो तेन। जगत में श्रेष्ठ जिन भगवान जो उनको नहीं प्राप्त हुए, ऐसे अन्य जीवों का भी अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। शब्द पकड़े तो न पास आवे, वो तो निमित्त से कथन है? उसका अर्थ कि जिसकी समझने की तैयारी है उसको भगवान निमित्त पढ़ते हैं, तो भगवान अनुग्रह करने में तत्पर है, ऐसा कहने में वो तो वितराग है। शब्द तो ऐसा पढ़ा है, देखो अणुवय अणु गए पराणु गह परायणा, बस देखो
भाषा ना अर्थ पकड़े के इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, ये लिखा है, सब व्यवहार नहीं का ग्रंथ है। ये व्यवहार प्रधान से बहुत पसंद आता है। पार्थ ऐसा लिया है कि जीवों का भी अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। वीतराग सर्वज्ञ देव जो दबाव वीरसेन स्वामी अंदर गाथाओं से अंदर મૂકેલી ચાંદની હે કલ્યાણ થાય એમ છે ભગવાન ને વિકલ્પ છે। ભગવાન તો વિતરાગ है, वो तो सर्वज्ञ है, भावना है जीवों कल्याण થાય એવું। ये एक करुणा संपन्न कहने में आता है। अकसाई भाव उत्पन्न हुआ, वितराग भाव उत्पन्न हुआ, उसमें सब जीवों के ऊपर करुणा करने वाला और अनुग्रह करने में तत्पर है, ऐसा उपचार से कहने में समझ में आया। वितराग तो सर्वज्ञ देव है, परमात्मा है, पूर्ण वितराग। इच्छा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं, वाणी निकले कि न निकले तो एक समय में त्रण काल त्रण लोग जानते देखते हैं। वो समय में वाणी निकलेगी, वो समय में वो समझेगा, वो समय में वो सुनेगा, सब एक केवल ज्ञान में जाना है। भाषा कर अर्थ के वीर स्वामी ऐसा कहा है, 13वां अध्याय में ऐसा कहा है, 13वां भाग में है। हाँ तो बोलो हमारा वांचू था तुम्हारा 81 पानों तो बोल ध्यान, उसमें देखते देखता आ गया। समझ में आया क्या क्या? देखो अणुवगय जी एने नहीं प्राप्त थया एने प्राप्त होते हैं, ऐसे अनुजीवों का भी अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं और उन्होंने राग द्वेष मोह रूप विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए वे अन्यथावादी नहीं हो सकते। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा देवादिदेव जिसको राग द्वेष अज्ञान नाश हुआ, पूर्ण सर्वज्ञ पद प्राप्त हुआ, अन्यथावादी नहीं हो तो वाणी यथार्थ निकलती है और दुनिया प्रति उसका अनुग्रह करने में तत्पर। अनुग्रह जिसको जोता है उसमें निमित्त पड़ता है, तत्पर कहने में भाई साहब गुणाट का बात करी, समझ में आया। बोला के जो भगवान ने पुनः आचार से समकीतना निसंग निकंग करुणा ने से वात्सल भगत जगत ऊपर वात्सल से बोला हाथ बोलाते हैं ना समकी दिया। ये वात्सल क्या प्रेम है, विकल्प है। कहते हैं भगवान तो मोह राग भी रहित है अने आत्मा अनादि काल का जिसमें मोह ने राग द्वेष होता है, मोह ना मिथ्याद भाव वो पाप परिणाम होते हैं में ठीक होते हैं, हित लाते हैं। पुण्य परिणाम विकार, राग का परिणाम पुण्य है, उसमें धर्म मानना है, पर पदार्थ का मैं ले सकता हूँ छोड़ सकता हूँ, ऐसा जो मानता है वो मिथ्याद भाव है। वो मिथ्याद भाव निषाद राग द्वेष भाव है, वो ही भावबंध है, वो ही भावबंध અને उसके कारण से नया कर्म आकर प्रकृति रूप होकर बनते हैं। समझ में आया? इसलिए निश्चित होता है कि बंध द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। ये निश्चय हुआ कि जड़ बंध नया कर्म का बंध होता है, उसमें जीव का भावबंध परिणाम हेतु नाम निमित्त कहने में आता। निमित्त कहने उपादान तो उसकी पर्याय में आने की बंधने की योग्यता है, कर्म स्वयं में शब्द लिया है, उसके स्वयं में अपने कान से प्रवेश करते हैं, स्थिति रहते हैं, अनुभव होता है, बनते हैं, उसके कारण से उसमें भावबंध को निमित्त कहने में आता है। बस इतनी बात है, समझ में आया? अब यह सिद्ध करते हैं कि राग परिणाम मात्र तो भावबंध है, तो द्रव्यबंध का हेतु होने से वही निश्चय बंध है। खरेखर बंध तो विकारी भाव मिथ्यात्व है, राग द्वेष ना परिणाम। राग शब्द मिथ्यात्व ने राग द्वेष विकास भाव, मिथ्या अभिप्राय, झूठा अभिप्राय और राग ने द्वेष, ये तीनों को यहाँ राग शब्द कहने में आया है। हम यह सिद्ध करते हैं कि राग परिणाम मात्र जो भावबंध है, राग परिणाम मात्र जो भावबंध है, इसलिए क्या कि राग ने द्वेष ने पुण्य भाव जो मिथ्यात्व भाव हुआ वही मात्र भावबंध है, वही मात्र भावबंध
तो द्रव्य बंध का हेतु होने से यही निश्चय बंध है। खरेखर तो निश्चय बंध वो है। हाँ, तो भगवान आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध चिदानंद स्वरूप एक किला शुद्ध उपयोगमय, उसको भूलकर जितना पुण्य ने पाप का भाव हो और जितना मिथ्या अभिप्राय का भाव हो, वही खरेखर भाव बंद कहने में आया, वही खरेखर आत्मा को बंधन है। वो समझाए थे भाई, जड़ का बंधन तो निमित्त रूप है, भाव बंध है वो खरेखर बंध है। वो 179 में कहते हैं, देखो रत्तो बंधदीकमं मुच्छदीकमेहिं राग रही दप्पा, ऐसो बंध समासो जीवाणम जान निश्चयदो। टीका, उसकी टीका, राग परिणित, राग शब्द है क्या मिथ्या श्रद्धा और राग द्वेष भाव, विषय कषाय भाव, सबको यहाँ राग कहने में आया है। समझ में आया क्या? ये मिथ्या श्रद्धा को भी यहाँ राग कहने में आया है। मिथ्या अभिनिवेश, 7 तत्व की विपरीत श्रद्धा, सम्यक दर्शन, तत्वार श्रद्धा, सम्यक दर्शनम, उससे जो 7 तत्व की जैसी है ऐसी अंतर में श्रद्धा और सम्यक दर्शन, उससे विपरीत श्रद्धा और मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन को भी यहाँ राग कहने में आया है। समझ में आया? जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, राग को धर्म मानना, पुण्य में मिठा करना, पाप में हित बुद्धि लेना, वो सब मिथ्या भाव है। वो मिथ्या तत्वा श्रद्धांत से विपरीत भाव है। वो भाव को यहाँ राग कहने में आया है। समझ में आया? राग परिणाम परिणित जीव ही, देखो भाषा के विषय, राग मिथ्या श्रद्धा आदि विकार परिणत जीव ही, परिणति पर्याय है। राग द्वेष मिथ्या श्रद्धा परिणित जीव ही नवीन द्रव्य कर्म से बनता है। को समझाई क्षमा? किसका बंद किया? भाव का। बस वो परिणाम जो हुआ मिथ्या श्रद्धा का, चैतन्य ज्ञायक स्वरूप को भूलकर, ज्ञाता दृष्टा है उसको छोड़कर, भूलकर राग द्वेष का कर्ता होना, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता होना, राग द्वेष में मिठास की अनुकूलता मानना, ऐसा जो मिथ्या भाव, उसकी साथ रहने वाला इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष भाव, सबको यहाँ राग परिणति जीव कहने में आया। ओहो, राग परिणत जीव, जीव ही एम नवीन द्रव्य कर्म से बनता है। नवीन द्रव्य कर्म से बनता है, व्यवहार संबंध कहा। द्रव्य कर्म तो अपने कारण से बनते हैं, तो पहले कह दिया, पर उसका संबंध किसको होते हैं कि राग ने मिथ्या श्रद्धा करने वाला जीव, उसको बंधन होता है। वैराग परिणित नहीं, महा सिद्धांत लिया है। देखो वो क्या कहते हैं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ और राग ने द्वेष भी मेरा खरेखर परिणाम मलिन नहीं। मैं तो ज्ञान शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसका अनुभव करने वाला हूँ। ऐसा वैराग परिणित सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, वो वैराग परिणित नहीं, ये वैराग परिणित जीव बनते नहीं। समझ में आया? वैराग की व्याख्या उन्होंने पाप समय सार में लिया है पहले, उन पाप के अधिकार कि वर्ष से उदासीन, ये तो एक साधारण बात है, पर शुभ अशुभ 2 प्रकार का भाव है, वो 2 ही राग है। उससे वैराग,
उसमें एक शुभ परिणाम ठीक है, अशुभ अठीक है, वो मिथ्या दृष्टि है, ये राग परिणित जीव है। समझ में आया? वो पुण्य पाप अधिकार में लिया है। वैराग, वैराग का अर्थ कि देहवाणी मन तो पर है, वो तो मेरे में है ही नहीं, पर पर्याय में शुभ ने अशुभ भाव होता है, उससे भी वैराग, उसके उदास, मैं ये नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शन में आनंद हूँ, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई, उसमें पुण्य पाप का दो भाग में एक रूप मानते हैं, दो ही बंध का कारण है, मैं अबंध स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई, उसको वैराग परिणीत कहने में आता है। समझ में आया? उसको धर्म परिणीत कहने में आता है। वैराग परिणीत को कि धर्म परिणीत, समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा शुद्ध उपयोगमय चीज, उसकी दृष्टि हुई तो पुण्य ने पाप दो ही भाव एक रूप बंध है, मैं उससे निराला हूँ, ऐसी जिसकी सम्यक दृष्टि हुई, ऐसा सम्यक ज्ञान हुआ और उसमें स्वरूप में स्थिरता का राग रहित परिणत हुआ, उसको यहाँ वैराग परिणीत कहने में आता है। समझ में आया? वो आते हैं ना, समय सार में आते हैं। कर उन पाप जो ये शब्द चामा रत्तो बंदई कमंग मुच्चई जीवो विराग संपत्तो, जो आई છે રત્તો બંધઈ કમંગ મુચ્ચઈ કમઈ રાગ રહી તપ્પા, બસ એ જેટલો કે રત્તો બંધઈ કમંગ મુચ્ચઈ જીવો વૈરાગ સંપત્તો, ऐसो जीण उदिसो समा कमे सुमारग। पहले रक्त रागी जरूर कर्म बांधे, विरक्त विरागी कर्म थी छूटे, તે સમાનપણે રાગીપણાના નિમિત્તપણાને શુભ ને અશુભ બંને કર્મને વિશેષપણે બંધના કામ તરીકે સિદ્ધ કરે છે અને તેથી બંને કર્મને નિષેધ है। लो वैराग का अर्थ वो है, वैराग पढ़ने का पुण्य पाप का भाव दो ही मलिन परिणाम एक रूप बंध का कारण है, मैं उससे भिन्न हूँ। शरीर वाणी मन कर्म तो अजीव द्रव्य है, उससे तो मैं भिन्न हूँ। वो जीव की श्रद्धा हुई कि अजीव भिन्न है, मेरा जीव भिन्न है, और पुण्य पाप दो आश्रव तत्व है, बंध का भाव है, वो भिन्न है। मेरा विनायक स्वभाव वो बंध भाव से भिन्न है। ऐसा अपना विनायक भाव की श्रद्धा ज्ञान किया, उसको पुण्य पाप से विराग हुआ, विराग हुआ, उपेक्षित हुआ, अपेक्षित न रहा। अपेक्षित नाम पुण्य है तो ठीक है, ऐसी अपेक्षा नहीं। जिसको पुण्य पाप से उपेक्षित हुआ, उपेक्षित नाम लक्ष्य छोड़ दिया और स्वभाव के लक्ष्य में आ गया, ऐसी वैराग परिणित जीव नवीन कर्म से बंधते नहीं। समझ में आते हैं? देखो क्या लिखा है, राग परिणित जीव ही नवीन द्रव्य कर्म से बनता है, अने वैराग परिणित नहीं। वैराग की व्याख्या कि जो मिथ्या श्रद्धा का भाव और पुण्य पाप का भाव सबको राग का है। शुभ अशुभ भाव और मिथ्या श्रद्धा सबको यहाँ राग कहा, तो ऐसा राग परिणित जीव नया कर्म से बनते हैं। ऐसा राग से विरक्त जीव, वैराग परिणित जीव नया कर्म से बनते हैं नहीं। हाँ, देखो वैराग परिणित इसको कहा कि जिसमें शुभ ने अशुभ भाव होता है, दो ही राग,
उससे उदास होकर स्वभाव सन्मुख की दृष्टि में राग रहित परिणति अपने हुई, उसको यहाँ वैराग परिणित जीव, धर्म परिणित जीव, मोक्ष मार्ग परिणित जीव कहने में आता है। समझ में आया? अरे बात वैराग परिणित नहीं એટલે नवीन द्रव्य कर्म से बनता नहीं। वो समझ में आया? बेज बात किया एकदम। भगवान आत्मा चिदानंद सचिदानंद सिद्ध समान स्वरूप, उसको भूलकर जितना मिथ्या श्रद्धा ने पुण्य पाप का भाव करते हैं, उस सबको राग परिणाम कहने में आया है। वो रागी नया कर्म में निमित्त होता, वो रागी नया कर्म से बनते हैं। वो शुभाशुभ परिणाम उससे वैराग होकर, उसका लक्ष्य छोड़कर, उसका आश्रय छोड़कर, दया दान व्रत का शुभ राग के आश्रय छोड़कर, अवलंबन छोड़कर, प्रीति छोड़कर स्वभाव की रुचि में परिणित करते हैं। उसको राग से रहित वैराग परिणित कहने में आया है। वो समझ में आया? अजी पहली बात तो क्या है वो समझ में न आवे, उसकी दृष्टि में न बैसे तब लग सम्यक दर्शन कहां से होगा? समझ में? बराबर है महीचंद्र जी। देखो भाव है, हिंदी है, हिंदी अच्छा। आज हिंदी लिया तुम्हें, हिंदी पे हाँ, दो भाई हिंदी आया है तो उसको भी ठीक पड़ेगा। हमारे एक भाई हिंदी है, हाँ वो नहीं आया। समझ में आया? एक बात कि भगवान आत्मा शुद्ध वीतराग परिणीत आत्मा है। वस्तु का स्वरूप तो वीतराग विज्ञान है। ऐसी जिसकी अंतर शरीर वाणी मन का लक्ष्य छोड़कर उसका अस्तित्व में मैं नहीं, शरीर वाणी कर्म की हयाती में मैं नहीं, और पुण्य पाप का भाव में मैं नहीं, मेरा स्वभाव में पुण्य पाप में शरीर कर्म नहीं, ऐसा अपना ज्ञात स्वभाव ज्ञाता दृष्टा में राग से रुचि छोड़कर, पुण्य पाप का परिणाम की रुचि, श्रद्धा, विश्वास कि वो मेरे कल्याण होगा, वो विश्वास छोड़कर अपना स्वभाव सन्मुख होकर राग से रहित श्रद्धा ज्ञान ने परिणति करते हैं, उसको वैराग परिणित जीव कहने में आया। वो वैराग परिणित जीव को बंधन होता। समझ में आया? वैरागी वैरागी એટલે હાલી નીકળ્યા બાયડું છોકરા છોડી નહીં, વૈરાગી વૈરાગી નહીં। भैया तो कुटुंब छोड़िया उदासीन में रहते, उदासीन रहते, ये उदासीन नहीं। अंदर में शुभ शुभ राग आता है, उससे उदासीन होकर आगे आसन लगाना, राग शुभाशुभ भाव में आसन दृष्टि न लगाकर शुभाशुभ उदासीन उदासीन जहाँ से आसन छोड़कर अपना स्वभाव में आसन दृष्टि लगाना। उदासीन होता है ना, उदासीन आश्रम में। अरे भाई भगवान आत्मा जानक लेखन स्वभाव, शुद्ध वीतराग स्वभाव, आनंद मूर्ति वीतराग विज्ञान धन आत्मा, उसमें आसन लगाना, दृष्टि उसमें लगाना और पुण्य पाप का भाव से दृष्टि छोड़ना, उसका नाम वैराग परिणित जीव कहने में आया है। वैराग परिणित जीव नया कर्म से नहीं बनते हैं।
धर्म परिणित हुआ तो धर्म परिणित से बंधन होता नहीं, और मिथ्या श्रद्धा और पुण्य पाप भाव और राग परिणति है, तो राग परिणति से तो अधर्म भाव है, उससे नया बंधन होता है। ऐसी बात है। समझ में आया? राग परिणित जीव नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता। बोला बनते हैं हम तो यूं, हमें नवीन कर्म से मुक्त नहीं होता, नकार से लेते हैं, अनेकांत से करते हैं। देखो अमृतचंद्राचार्य, भगवान कुंकुंदाचार्य, दिगंबर मुनि, संवत 49वां हुआ, उसका श्लोक है यार। दिगंबर मुनि जंगलवासी वनवासी था, भावलिंगी संत, वो भगवान पासे गए थे, सिमंदर भगवान पासे गए थे, 8 दिन रहे थे। जहाँ करा शास्त्र यहाँ रचा है, बनाया है, तो 2000 वर्ष हुआ शास्त्र को, प्रवचन सार, समय सार आदि। उसकी टीका करने वाला अमृतचंद्राचार्य है, वो 900 वर्ष पहला दिगंबर मुनि संत वनवासी था। उसने टीका किया है, निमित्त से कथन राग परिणित जीव अर्थात भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा है, ऐसी दृष्टि नहीं। अने पुण्य ने पाप वाला मैं हूँ, मैं शुभ अशुभ भाव वाला हूँ, ऐसा राग परिणित जीव, ऐसा मिथ्या परिणित जीव समझ में आया? शरीर वाला मैं हूँ, कर्म वाला मैं हूँ, वो तो राग परिणित मिथ्या परिणित है ही, पर पुण्य पाप वाला मैं हूँ वो भी मिथ्या परिणित जीव है, क्योंकि पुण्य पाप आश्रव तत्व है, विनायक जीव भिन्न है, दो को एक मानते हैं, वो मिथ्या सहित राग परिणित जीव मिथ्या परिणित है। समझाणु काई जो બંધ અધિકાર લઈને બંધ ને અબંધ બેયની વાત કરી, કેટલા વખત ત્યારે બંધાતા મુંબઈ 1 કલાક તો હાલતો નથી મારા વિચારમાં, ક્યાંય ચાલ્યો જાય જાવ અહીં તો મોહનભાઈ કઈ નથી, અહીં તો મેળા છે તમને જો શું છે, પણ કે બીજે જવાનો વિચારનું કઈ કારણ છે? सबको तो બહુ વાંચી છે। હવે રહ્યા કે વિચાર આવ્યો તો આજ મારે લાકડી મારો કે મારે લાકડી ઓછી મારી છે, કાંઈ ન મળે, આ અંબારે પ્રકાશ ને આ અંબારે ખવું, આ અંબારે ઠીકણું, કાંઈ લેવા દેવા કારણ છે? हाँ દીકરો હતો, કોનો દીકરો? અહીં તો कहते ने हाँ, ये पर चीज मारी मानना वो मिथ्या भाव है। દીકરા દીકરી कुटुंब शरीर वाणी मन बदा पर है, पर अधिकार ज्ञेय तत्व है, तो पर ज्ञेय को अपना मानना उसका नाम मिथ्या भाव है, मिथ्या श्रद्धा मिथ्या दृष्टि का भाव है। और पर जीव ने पर अजीव मेरा मानना वो तो मिथ्या भाव है ही, पर शुभ ने अशुभ दो आश्रव तत्व है, वो आश्रव तत्व मेरा है, ऐसा मानना भी मिथ्या दृष्टि का मिथ्या भाव है। वो यहाँ कहते हैं, समझ में आया? वो बात तो क्या रह गई बाहर की बात क्या रह गई? लक्ष्मी मारी, मेरी लक्ष्मी है, मेरा पुत्र है, क्या तेरा हो, तेरे से जुदा क्यों पड़े? तेरी चीज तेरे से जुदी पड़े, वो चीज तेरी नहीं, जुदी पड़े तेरी नहीं, नहीं जुदी पड़े तेरी। तो शरीर कर्म आदि बाहरी हो तो पर है, जुदा पड़ जाते हैं, और पुण्य ने पाप भी तेरी नहीं, क्योंकि जुदा छूटा हो जाता, शुभ शुभ भाव भी छूटा, छोटा क्या कहते हैं, छोटा कहते हैं, अलग हो जाता है। तो अलग हो जाए उसको अपना मानना, उसका नाम मिथ्या भाव ने मिथ्या दृष्टि का परिणाम है।
તો બરાબર છે. હવે શું છે હું પણ ન્યા કેમ પાછું યાદ આવે શું સુરત પણ આ તો અંદર ભાઈ અંદર અંદર આવડે આવે. હા 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 આવે જુદી વાત છે, પણ પાછું એને વિકલ્પ મારા બે मेरा वो मानता मिथ्यात है, ये आत्मा को मारण करना करते हैं. हाँ 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 આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. 179મી ગાથાનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું.